Visible? Yes, sir. Okay. So your name of our chapter is food processing. Food processing, and it is the fifth chapter of your syllabus. I'm also having the syllabus copy with me. This chapter covers 10% of your syllabus, means almost one question for 10 marks will be coming from this chapter as well. The topics which we will be covering in this chapter is, first of all, what is food processing? Then, what are the objectives of food processing? What are the types of food treatments which are given? Then we'll be discussing what are the types of heat treatments which is given to food items. Then lastly, we'll be discussing what is the effect of heat, acid and alkalis on food processing and preservation. Means how does these affect our food processing? Is it clear the topics of this chapter? And the question which can come from this chapter, first of all, is define food processing and what are its objectives. The question can come. Then the question can come, what are the different types of food treatment? What are the different types of treatment which is given to food before it is consumed? This will be discussing in detail. Then what are the types of heat treatment? Means what are the types of heat treatments which can be given to food? The question can come. Then question can come, how does the following affect the foods preservation? First is heat, then acid, then alkalis. Alkalis में आ जाते हैं आपके salt, sugar, etc. Other things which you add while you are cooking your any type of food item. Yeah. Now we'll be starting, first of all, we'll be starting with the definition of food processing. Now, what actually is food processing? Food processing क्या होता है? Food processing covers general characteristics of raw materials, principles of food preservation, food processing factors, which includes packaging, water and waste management, etc. Simple याद रखना है, food processing क्या होती है? Food processing is, in simple, the treatment or how we handle the food items before we consume it or before it is actually cooked. Cooking होने से पहले, what all things we do to the food item, that all comes in food processing. Is it clear to everyone? Simple food processing is खाना बनाने से पहले जो भी हम उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, it includes everything like cutting, peeling, cooking, boiling, roasting, every food cooking method which we follow, all these comes under food processing. But food processing we will be discussing in detail, starting from the manufacture say till the time it is cooked. What all things we do in this, that all comes in food processing. Is it clear? It also includes packaging and what all waste, what we do with waste. How does we preserve food? How can we preserve food item for longer time? And what all the things we do while we handle any types of food products. Clear? Now we'll be starting with the objectives of food processing. Means क्यों करनी जरूरी होती है food processing? क्या काम होता है food processing? First of all, simple. It is very simple. Food processing क्यों की जाती है? To preserve the natural properties of the food. Is it clear? Natural properties means so that we can retain its natural flavor. We can retain its natural flavor so that we can consume it. Because we know we cannot consume any item raw. So for that, we have to preserve its natural properties that we can do by cooking those items. So to preserve the natural properties, food processing is necessary. Second objective of food processing is to preserve the food against spoilage. So it is naturally, we can prevent the food from spoilage by processing it. प्रोसेसिंग को we will be discussing in detail, then you will come to know कि प्रोसेसिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं. इसके स्टेप्स मींस स्टार्टिंग से लेके एंड तक. तो इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है सो दैट वी कैन अवॉइड वेस्टेज एंड वी कैन अवॉइड द फूड अगेंस्ट स्पॉइलेज. Then to improve the quality of food. This is also very clear. So in order to improve its flavor, in order to improve its taste, the food processing is very necessary. Otherwise, we cannot consume the food item if the quality of food is not good. So we can improve the quality by processing it through the proper procedure and channels. Next objective is for better handling, processing and packaging of food items. So this is also clear. So that we can process this through
process and handle and pack the food items in a better way. So then only the food processing will be done in the correct manner. Food processing में packaging is also a part of food processing only. But packaging is done at the last. But packaging is not done in case of every food item, because in hotels what you do, there is if guest wants, they can pack the food item also. But mostly the packaging is mostly it can be seen in fast food outlets. So packaging se pehle jo bhi handle, how it is processed, how it is packed, these are also the part of food processing only. Next is to make food more acceptable or convenient to consumer. So this is also clear with the point only. The consumer can only consume or eat that food items only if it is processed properly, if it is packed properly, if it is handled properly, if it is cooked properly. Then only the consumer can eat it, because the raw food item cannot be eaten by anyone. Okay? We are humans, we cannot eat raw. We have to eat the cooked item only. So for make it more acceptable, the food processing has to be done in the correct manner, and so that the consumer can consume it and they can enjoy it. So I think the objectives of the food processing are clear with all these points. Rachit, you can just unmute yourself. Is it clear, Rachit? Yes, sir. Later on, if you have any doubts, we can discuss it later after the class, next class. So next we'll be discussing in this chapter is what are the types of food treatments. Means what all things we do to the, you have to just take the example of raw material. For example, एक सब्जी है या एक, for example, if it is a flour or if it is a atta, anything. So starting से लेके end तक what all we do to any type, it is, you will just take the example of vegetable, but you have to keep in mind for every food item you have to follow all these types of treatment. The first treatment which is given to food before it is handled is material handling. Before it is processed, material handling. आप समझ लेना ये मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. मटेरियल हैंडलिंग में क्या होता है? मटेरियल हैंडलिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ द फूड ट्रीटमेंट. इसमें क्या होता है? मींस हार्वेस्टिंग इज डन ऑफ द वेजिटेबल्स और एनी टाइप ऑफ फूड आइटम. ठीक है. वेज आइटम जितनी भी होती है ऑलमोस्ट इट इज ये आपके क्रॉप्स होती है मोस्टली. ठीक है. तो क्रॉप्स को क्या किया जाता है? उसकी हैंडलिंग कैसे की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी प्रोसेस्ड. हार्वेस्टिंग हैज टू बी डन, transporting has to be done, and it has to be kept at the place where cleaning has to be done. Material handling is first step. It includes harvesting of the food item, means harvesting किया उसके crops का. Then it includes storage. उसके बाद उसकी storage भी करनी पड़ेगी. We cannot एकदम उसको काटने के बाद we cannot use it. तो उसकी थोड़ी देर harvesting के बाद उसकी storage भी करनी पड़ेगी. Then it has to be kept at certain temperature and it has to be transported from one place to another, right? Material handling में होगा, transportation भी जरूरी है. जब हम उसको crops को काटेंगे, you have to transport it from from the your crops area to your where it has to be processed. ठीक है? तो transportation, harvesting, all these things are included in material handling. Next is cleaning. First step is clear in food treatment is material handling. Now second one is cleaning. So this is also clear with the point only. Cleaning has to be done for each and every food item. Without cleaning, we cannot use it. We cannot process it properly. So cleaning has to be done after the food has been harvested and it has been transported to the processing unit. ठीक है. जब उसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसकी क्लीनिंग करना जरूरी होती है. ठीक है. ये तुमने देखा होगा जब you use the vegetable also in your practical, what you do, you have to clean it before you have to cook it. So cleaning is also very necessary and it's the second step of your food treatment or food processing. Cleaning can be done for some items including water. ठीक है. पानी से की जाती है mostly cleaning. For some item, cleaning can be done by using your like some
Acids can be used like vinegar and all. Vinegar solution and something can be used. And it is done by using big machines also. There are some big machines in the processing unit which cleans your food products. You just take your example of any type of vegetable, any type of crops. Crops can be your wheat and all. Okay. Now, before, after harvesting, it is cleaned at the processing area. Simple, it is clear. Cleaning can be done with the use of water or with the use of any type of machineries. Now, after cleaning, the third treatment or third step in food processing is separating. Now, the food item which was harvested and cleaned, we have to separate it. How separating is done? This things separation you perform in your practical as well. You know what separating में क्या क्या आता है? Separating includes your up separating में yoga. First of all, you have to separate the solid items, liquid items, semi-liquid items. Okay, there are n number of food items which comes from the your processing unit. तो कुछ liquid होती है, कुछ dry होती है, कुछ solid होती है, कुछ semi-solid होती है. अब separating कैसे करनी है? Separating can be done. इसमें क्या क्या रहता है? देखो, like you do peeling, like you do cutting, like you do slicing, grinding. All these are the methods of separating your food items. Is it clear? Separating. Separating में also it includes vacuum removal. वैक्यूम के थ्रू भी इसकी सेपरेटिंग की जाती है वेरियस टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स की. ठीक है, बट इसमें मोस्टली तुमने याद रखना व्हाट यू डू बिफोर कुकिंग एनी फूड आइटम. क्या करते हैं? उसको पीलिंग करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, देन यू हैव टू डिप इट इन वाटर. एंड सो जो आपने वेजिटेबल्स को सम व्हाट यू डू, ऑनियन को सेपरेट रखते हो, टमेटोज को सेपरेट रखते हो फॉर कुकिंग एनी टाइप ऑफ ग्रेवी. ठीक है, ऑल दीज आर दी इट कम्स इन दिस सेपरेटिंग ओनली. Is it clear? Three steps till now. Handling. Handling is to get from the processing to harvesting and get to the processing unit. Harvesting में आ जाएगा. Transportation also. Then cleaning उसके बाद की जाएगी. Cleaning can be done through various machines and by high pressure of water as well. In some items, water can be used, not used for dry items, but for dry items, cleaning can be done with the use of vacuum cleaners, or there are some big machines. Then separating has to be done. Separating is done using but there are also some machines for separating. Otherwise, the separating which you do, take the example in your practical, what you do, peeling, cutting, slicing, all the cooking means how you handle the food, raw food before it is cooked, all it comes in separating. Now, fourth type of food treatment which comes is disintegrating. ठीक है, disintegration. Disintegration का मतलब समझ लेना आप क्या होता है. सेपरेटिंग में तो हो गया, तुमने अलग अलग करके रख दिया, टमाटोज अलग रख दिए, पोटैटोज अलग रख दिए, अनियन अलग रख दिए, और वो कटिंग स्लाइसिंग करके अलग रख दिए. अब है डिसइंटीग्रेशन. डिसइंटीग्रेशन में आता है एक्चुअल में व्हाट यू डू नाउ, कटिंग यूजिंग लार्ज नाइफ्स और वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राइंडर्स. ठीक है, अब आपने क्या करना है, तो बड़े बड़े पीसेस में है आपके पास. ठीक है, अब बड़े बड़े पीसेस को स्मॉल स्मॉल पीसेस में आपको कट करके रखना है, उसको डिसइंटीग्रेट करना है, मींस सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू कंज्यूम. ठीक है, so that it is easier for you to consume. Now what you have to do, you have to disintegrate or you have to cutting using glass, like you do in butchery. Butchery में क्या होता है, होटल्स में बड़े बड़े पीसेस आते हैं मीट के. ऐसा नहीं आता कि छोटे छोटे पीसेस आएंगे. इन butchery item in hotels, big pieces or only full meat is coming to the hotel. So the butchery में जो शेफ होता है, what he has to do, he has to disintegrate all those items. डिसइंटीग्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू कट इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और उस पर टैग लगा के इट इज बीन केप्ट इन द योर डीप फ्रीजर और योर स्टोरेज एरिया. सेम थिंग हैपेंस विद द अदर फूड आइटम. जो पैक्ड आती है फूड आइटम, उनके लिए डिसइंटीग्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. डिसइंटीग्रेशन इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर द आइटम्स
like meat, vegetables, fruits, and the items which comes in means bulk or which comes in large size. इसका size बड़ा होता है, but for cooking we have to use it in small pieces. So is it clear now? Disintegration also. ठीक है? Disintegration से simple याद रखना है by means cutting the food items or for cutting the item into small pieces from it was in big pieces. ठीक है? Now next is pumping. Pumping is के अंदर two parts आ जाते हैं which includes mixing and pumping. Pumping is the next step in the different types of food treatment. Pumping से क्या समझ रहे हो आप? Means ये food processing या in hotels में some hotels में क्या होता है कि there are some types of various pumping machine जिससे एक चीज को ट्रांसफर करना है दूसरी जगह, which is used using varieties of pumps. ठीक है? Pumping can be done on the food processing area as well. ठीक है? बस pumping ये भी याद रखना, pumping can be only done for the item which comes in liquid form. ठीक है? Pumping cannot be done for the item which comes in pieces or which is hard, which is solid. Solid की pumping नहीं की जाएगी, but जो liquid items है उनकी pumping can be done, and it can be done before packaging. Like oils आते हैं, oils को क्या करना होता है, oils की मशीनरीज होती है ऑयल फैक्ट्रीज में, तो उसको पंप किया जाता है वन प्लेस टू अनदर एंड उसके बाद उसकी बॉटलिंग की जाती है. वैसे होटल्स में भी सम टाइप्स ऑफ पंपिंग मशीन्स कैन बी यूज, जिससे आपके सम लिक्विड आइटम्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम फ्रॉम द लाइक स्टोरेज एरिया टू योर किचन यूनिट. तो ये है पंपिंग. इससे क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है, डायरेक्टली द प्रोडक्ट विच इज रिक्वायर्ड विच इज टू यू एट योर किचन. ठीक है? नेक्स्ट इज मिक्सिंग. मिक्सिंग तुम यू नो मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स कैसे की जाती है. नाउ मटेरियल हैंडलिंग इज डन, उसकी क्लीनिंग भी होगी, उसको तुमने सेपरेट भी कर दिया, सॉलिड को अलग रख दिया, लिक्विड को अलग रख दिया एंड सेमी लिक्विड को अलग रख दिया. उसके बाद डिसइंटीग्रेशन भी कर दी. जो बड़े बड़े फूड आइटम्स थे उनको आपने काट करके स्मॉल में कर दिया, जो लिक्विड आइटम्स थे उसको तुमने पंप करके अलग रख दिया. ये जो हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं ना, ये स्टेप्स है कि जब तुम किसी भी आइटम को कुक कर रहे हो उससे पहले उसको कैसे हैंडल कर रहे हो. ठीक है? अंटिल इट इज कुक्ड एट लास्ट. सबसे कुकिंग तो जो एंड प्रोडक्ट होगा वो एट लास्ट में होगा, बट उससे पहले जो हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं ये है फूड प्रोसेसिंग. तब इसका नाम दिया फूड प्रोसेसिंग और फूड ट्रीटमेंट्स. क्या क्या चीजें हम करते हैं बिफोर इट इज कुक्ड इन योर फिनिश्ड प्रोडक्ट. Now mixing can be done by using blenders for the dry ingredients. Dry ingredients को देखा होगा कैसे मिक्स करते हैं. जो योर खड़े मसाले गए होते हैं उसकी तुमने मसाले बनाने होते हैं, क्या करते हो उसको मिक्सी में ग्राइंड कर देते हो, राइट. तो उससे क्या होता है, वो सारे जो खड़े मसाले थे उसका एक पाउडर बन जाता है. ठीक है? सो दैट इज द पार्ट ऑफ मिक्सिंग ओनली. Types of mixing which can be done using other the big types of mixers as well. ठीक है? मिक्सर्स होते हैं. इट कैन बी एग्जांपल फॉर आइसक्रीम्स, और तुम डो बनाते हो, राइट. बेकरी में डो बनाते हो, बेकरी में इफ यू आर मेकिंग एनी टाइप ऑफ केक्स का जो तुम उसका स्पॉन्ज बनाते हो, स्पॉन्ज के लिए क्या करना होता है आपको, यू हैव टू मिक्स इन. वो जो उसके मिक्सर होता है बड़ा सा, ठीक है, उसमें तुम एग डाल देते हो, फ्लोर डाल देते हो, इकट्ठा बटर डाल के, तो वो उसकी मिक्सिंग ब्लेंडर से होके वो एट लास्ट इट बिकम्स इन द पेस्ट फॉर्म. सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ मिक्सिंग. क्लियर है? पंपिंग एंड मिक्सिंग था. नाउ आफ्टर पंपिंग इज डन, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, द नेक्स्ट स्टेप इज हीट ट्रीटमेंट और हीट एक्सचेंज. ठीक है? हीट अप मींस एवरीथिंग इज ओपन अप. हम वी हैव टू नाउ start cooking. तो कुकिंग के लिए क्या करना होता है, we have to give it the heat. Without heat any product cannot be cooked, right. Heat exchange is necessary. तो heating can be done. ठीक है? हीटिंग में कौन कौन से ट्रीटमेंट आ जाते हैं आपके. हीटिंग कैन बी डन बाय रोस्टिंग, बाय फ्राइंग, बाय बेकिंग, बाय
शैलो फ्राइंग और जितने भी टाइप की कुकिंग मेथड्स होते हैं which you have studied in your food production as well, all those cooking methods which includes heating comes in your heat exchange. Poaching, frying, ठीक है, then it includes baking, roasting, ठीक है, panning, deep frying, shallow frying. All these are the types of heat exchange methods. So that heating is done. Why heat exchange is done? Heat exchange is done in order to cook the food item so that we can consume it later. Is it clear till now here? अब is it ये भी है, देखो heat exchange के बाद cooling is also necessary. Next step जो है हमारा, ठीक है. अब there are some item we cannot heat it, we cannot consume it directly. अगर वो जैसे ही बेक से एकिंग some item कुछ भी उबलता तो हम उसको नहीं खा सकते, राइट. उसका little bit it has to be cooled as well. और सम आइटम जो है कुछ ऐसी जो हम ठंडी खाते हैं, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम्स हो गए, शेक्स हो गए, वेरियस टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स हो गए. देयर आर सम डेजर्ट्स व्हिच वी कंज्यूम कोल्ड, ठीक है. तो वी कुक करने से, लेकिन बट व्हेन वी हैव बेक्ड इट, बेकिंग के टाइम इट वाज हीट वाज अप्लाइड टू इट, बट व्हेन वी आर कंज्यूमिंग इट वी हैव टू कंज्यूम इट इन द चिलिंग, ठीक है. उसको ठंडा खाना है तो फॉर ठंडे खाने के लिए वी हैव टू कूल इट, ठीक है. The cooling, how it is done? Cooling can be done by using refrigeration. Freezing में डाल सकते हैं उसको, रेफ्रिजरेटर में डाल सकते हैं, ठीक है. उसको फ्रीज कर सकते हैं and we have to store it below 12 डिग्री सेल्सियस. जो कूलिंग के लिए हमें 12 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में उसको सेव करना है, उसको स्टोर करना है. और there is something which is called as blast freezing. Blast freezing में क्या होता है, सडनली अगर आपको कोई ऐसी, जैसे कि फॉर एग्जांपल होटल्स में कोई ऑर्डर आ जाता है ना, immediately you have to serve it chilled to the guest, and but you are cooking it right now. So there is something called blast freezing. इसमें क्या होता है, immediately the temperature of that blast freezer is -26 डिग्री सेल्सियस. उससे क्या होता है, immediately जब आप उसको उसमें डालोगे, जब उसको वो immediately cool हो जाएगा and it can be served to the guest for the consuming. Cooling के बाद evaporation is also a part of evaporating is also a part of cooling only, ठीक है. इसमें क्या होता है, evaporation it helps to concentrate the food and removal of water. Evaporation का मतलब सबको पता है कि removal of moisture, removal of water, ठीक है. ये कैसे किया जाता है आपका, by sun drying, for example like salt के लिए हम सन ड्राइंग करते हैं इस तरह, सो दैट जब आपने देखा होगा सॉल्ट समुद्र से निकलता है, ठीक है, वो उसमें मॉइस्चर होता है, तो उसको मॉइस्चर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको इवेपोरेशन करना जरूरी है. इवेपोरेशन कैन बी डन बाय सन ड्राइंग, ठीक है. और देयर आर सम मशीन्स आल्सो विच ड्रायर्स, जिसमें से गर्म हवा फेंकी जाती है, तो ड्रायर से भी वी कैन इवेपोरेट और वी कैन हम उसको उसके मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं. बट ये जो इवेपोरेशन एंड ड्राइंग है ना, इट इज नॉट डन टू ईच एंड एवरी फूड आइटम. इट डिपेंड करता है कि व्हाट प्रोडक्ट यू आर यूजिंग. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया सॉल्ट का, तो इवेपोरेशन सॉल्ट के लिए नेसेसरी है, इट माइट नॉट बी नेसेसरी फॉर अदर फूड आइटम. ड्राई ऑलरेडी सम फूड आइटम्स कम इन ड्राइड फॉर्म ओनली, उनके लिए इवेपोरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. इवेपोरेशन इज ड्राइंग इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर फूड आइटम विच कम्स इन semi-liquid or which has moisture content in it, जिसमें evaporation की जरूरत only उसी में होती है जिसमें you have drying, जिसमें आपके moisture is present. Is it clear? After this cooling, evaporation, drying, at last what is done? Forming is done. अब ये जो forming including is your actual cooking. अब जो आप actual cooking कर रहे हो, that is coming in forming. Actual cooking में क्या कर रहे हो आप? You are adding masalas, you are cooking gravies, you are adding various types of ingredients to it so that its taste is improved and we can eat it and give to the guest, so that it is means खाने में वो अच्छा लगे. तो उसलिए उसको आप फॉर्मिंग मतलब उसकी तरह से शेप दे रहे हो, ठीक है. स्टार्टिंग से लेके एक बार स्टेप्स देख लेना क्या है. सबसे पहले हैंडल किया, ठीक है. हैंडल कैसे किया, कैसे हार्वेस्टिंग हुई प्रोडक्ट्स की और उसको ट्रांसपोर्ट किया प्रोसेसिंग यूनिट में. जब वो प्रोसेसिंग यूनिट में आ गए, वहां पे उसकी क्लीनिंग की गई. क्लीनिंग वाज डन विद द वेरियस टाइप्स ऑफ मशीनरीज फॉर ड्राई आइटम्स,
And for liquid item, for other item, it can also be like vegetables, it can be also be done through water. क्लीनिंग करने का हमने उसकी सेपरेटिंग की, सेपरेटिंग में हमने क्या किया, सॉलिड आइटम्स थे उनको अलग रखा, लिक्विड आइटम्स थे उनको अलग, एंड सेमी लिक्विड को हमने अलग सेपरेट करके रख दिया. जब हमने सेपरेट कर दिया, अब उसकी हुई डिसइंटीग्रेशन. डिसइंटीग्रेशन का मतलब बड़े पार्टिकल्स को छोटे में कन्वर्ट करना. ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स थे उनको अब हमने कट करके स्लाइस करके, वेरियस टाइप्स की मशीनरीज भी होती है होटल्स में जिससे हमें बड़े बड़े पीसेस को कट करके रख सकते हैं. एग्जांपल मैंने बुचरी का दिया था. ठीक है, वो होगा डिसइंटीग्रेटिंग का पार्ट. डिसइंटीग्रेशन हुई, बड़े पार्टिकल्स को छोटे में कर दिया. उसके बाद पंपिंग. पंपिंग मैंने आपने बताया इट वाज ओनली, पंपिंग कैन ओनली बी डन फॉर आइटम व्हिच कम्स इन लिक्विड फॉर्म. तो लिक्विड फॉर्म में जो आइटम्स आ रही थी उसकी हमने पंपिंग कर दी, and it was transported from through various using various types of pumps or pumping machine. Same, then next goes with mixing. अब आ गया mixing. Mixing में क्या कर रहे हो आप? Now you are mixing all the ingredients so that now next step you have to do is cooking it. तो cooking से पहले हम ingredients को mix कर रहे हैं. ठीक है, grinding and all वो सब इसमें आ गया था पहले. ठीक है, उसके बाद हमने mixing करने के बाद अब हम उसमें heat apply करेंगे. जब हम उसमें हीट अप्लाई करेंगे तो तभी कुक होगा. ठीक है, दैट्स व्हाई हीट एक्सचेंज इज नेसेसरी. तो हीट एक्सचेंज में क्या हुआ, हमने भी अप्लाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ कुकिंग मेथड्स सो दैट वी इट कैन बी कुक्ड लेटर ऑन, इट कैन बी कंज्यूम्ड. आफ्टर हीट एक्सचेंज कूलिंग हैज टू बी डन फॉर सम आइटम्स. कूलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरी फूड आइटम. कूलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सम फूड आइटम. कूलिंग में किया हमने, फॉर एग्जांपल इसमें आपने बेकरी के एग्जांपल लेने का. बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं जो which are and various types of dessert which are consumed chilled. ice creams दे सकते हो, few shakes हो सकते हैं, juices हो सकते हैं, और उनकी सबकी cooling करना necessary है. Evaporation is only done for those items जो जिसमें moisture content present होता है. Evaporation can be done with the help of sun drying or by using various types of dryers. ठीक है, after drying at last forming is done. Forming means now actual cooking is taking place. कुकिंग में तो तुम्हें पता ही है वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स जितने भी हैं, फ्राइंग कर रहे हो, ग्रेवी बना रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो सबको इंग्रेडिएंट्स, और एट लास्ट यू आर गिविंग इट अ शेप, और एट लास्ट यू आर गिविंग इट अ कुक्ड फॉर्म, जो उसकी फिनिश प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं लास्ट में जो कुक करके तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है, दैट इज डन इन फॉर्मिंग. इज इट क्लियर? ऑल टाइप्स ऑफ फूड ट्रीटमेंट. फॉर्मिंग के बाद लास्ट स्टेप which comes in food treatment is packaging. Packaging सबको पता है क्या होता है. Packaging can be done by vacuum packing. ठीक है, by using various types of पैक के जो कंटेनर्स आते हैं, कंटेनर्स में पैक करके दे सकते हैं. ठीक है, बॉक्सेस आते हैं उसमें पैकिंग करके दे सकते हैं. बट पैकेजिंग इज मोस्टली इट इज सीन इन दी फास्ट फूड आउटलेट्स. तुमने देखा होगा जहाँ पे, और जो टेक अवेज रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पे पैकेजिंग इज ऑन मोर फोकस. और इन होटल्स पैकेजिंग ज्यादा फोकस में नहीं की जाती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गेस्ट जो कम्स है वो वहीं खाने आते हैं. समटाइम्स इफ पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द गेस्ट, वो होटल्स में भी फैसिलिटी होती है उसकी. दे आर बॉक्सेस एंड कंटेनर जिसमें पैकेजिंग की जाती है, वैक्यूम पैक्ड, so that it is given to the guest can carry away with them. Is it clear the types of food treatment till now? If you have any doubts regarding all these types of food treatment, you can message me on my number that we can discuss later on. Okay, I will be checking the WhatsApp. अगर अभी भी कोई doubt है तो you can send me on my WhatsApp. We will discuss it again. So now we will move on to next topic that was in this chapter is various kinds of heat treatment. Heat treatment भी मैंने तुम्हें बताया था. Heat treatment में already हमने इसको थोड़ा discuss कर लिया है. तो heat treatment में now again जो cooking methods हम apply कर रहे हैं, all those comes in heat treatment only. Roasting, baking, frying, and there are other methods भी use होते हैं जिससे हम we apply heat to the product. ठीक है, the heat can be supplied through conduction, convection and radiation or a combined of these. ठीक है, अब तुमने देखा होगा मोस्टली कंडक्शन होता है जो डायरेक्ट हीट होती है, कन्वेक्शन होता है जो मींस दोनों तरफ से. ये तुमने फूड प्रोडक्शन में पढ़ा होगा डिटेल में कि हाउ आर द टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट. 3 टाइप्स की हीट ट्रीटमेंट दी जाती है फूड आइटम्स को. ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो इसके थ्रू एंड ऑल दिस इंक्लूड्स
heat exchange. Heat exchange, we are discussing it now again. Heat exchange is also type of food treatment के अंदर ही आता है heat exchange भी, ठीक है. Someone who we have asked for the what is heat exchange. Heat exchange which is also a type of food treatment only. Food treatment के अंदर ही आता है, but इसका अलग से separate question भी आ सकता है. What are the types of heat treatments? So heat treatments का question अगर आता है, then you have to explain heat treatments में क्या आता है. Roasting, baking, frying and जो हम कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन और वेरियस टाइप्स ऑफ अदर जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं जिससे हम हीट देते हैं प्रोडक्ट्स को, ऑल दिस कम्स इन योर हीट एक्सचेंज. पंपिंग का क्या है? पंपिंग आल्सो समवन आस्क्ड फॉर पंपिंग. पंपिंग में मैंने बोला पंपिंग इज ओनली डन फॉर द लिक्विड आइटम्स, ठीक है. ये कोई मतलब बहुत जरूरी भी नहीं होता कि एवरी जगह एवरी होटल्स में पंपिंग मशीन या ये हो, बट ये प्रोसेसिंग यूनिट में पंपिंग कैन बी डन, ठीक है. फॉर्मिंग, someone has asked for difference between heat treatment and forming. Heat treatment तो क्या है? Which you are giving means applying cooking methods to your product is the heat treatment. When जब उसको कुक कर रहे हो आप, उसको हीट में कुक कर रहे हो, that is heat treatment. But forming क्या होता है? Forming is the last, means जो at last जो actual product which is cooked, और जो आप हीट ट्रीटमेंट के बाद जो प्रोडक्ट which you get, जो cooked product, the finished product which you get, that is all coming in forming. Forming means now you are giving it a shape by applying the cooking, by applying the heating. जब हीट अप्लाई कर रहे हो उसको फॉर्म शेप दे रहे हो, that is coming in forming. क्लियर है? डिसइंटीग्रेशन, someone has asked. डिसइंटीग्रेशन मैंने बताया था क्या होता है. डिसइंटीग्रेशन was the means separating of big items to the small item. बड़े जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको कट करके उनको वेरियस टाइप्स ऑफ स्लाइसर्स, मिक्सर, मींस कटिंग मशीन्स, और बाय यूजिंग लार्जर नाइफ्स उसके छोटे छोटे पीसेस करके रखना, दैट इज डिसइंटीग्रेशन, ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ वी कैन डिस्कस द फूड प्रिजर्वेशन. इज इट क्लियर नाउ? फूड ट्रीटमेंट्स एंड हीट ट्रीटमेंट. जो हीट ट्रीटमेंट है, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फूड ट्रीटमेंट ओनली, बट इफ क्वेश्चन कम्स दैट हीट एक्सचेंज क्या होता है, तो आपको हीट एक्सचेंज में ओनली यू हैव टू एक्सप्लेन दिस आइटम जो आपकी कुकिंग मेथड्स होते हैं और किस किस तरीके से यू कैन अप्लाई हीट एंड कुक योर प्रोडक्ट, वो आपके हीट ट्रीटमेंट्स में. हीट ट्रीटमेंट में देखो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, रोस्टिंग, बेकिंग एंड फ्राइंग, ये मेन टाइप्स के हीट ट्रीटमेंट्स है. और हीट ट्रीटमेंट कैन बी कवन, जैसे कि गैस बर्नर्स पे कुक करते हो, बेक करते हो आइटम्स को, बेकिंग में आपने कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये मतलब एक तरह की कुकिंग टेक्निक्स है which is used in your while you give any type of food treatment to food. Now we will discuss the food preservation. Food preservation is very simple, ठीक है. food preservation का क्या मतलब है? आप देना some food item जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो उसकी फूड प्रिजर्वेशन करना जरूरी होती है. उसमें सम आइटम में क्या होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जल्दी अटैक करता है, उससे क्या होता है, वो फूड प्रोडक्ट खराब होना शुरू हो जाते हैं. तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए हमें फूड प्रिजर्वेशन करना जरूरी होती है. फूड प्रिजर्वेशन हैज टू बी डन फॉर द आइटम जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है. एविडेंस ऑफ एनी सच डिटोरेशन ऑफ फूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पैदा होते हैं. फूड प्रिजर्वेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन सिंपल याद रखना है. फूड प्रिजर्वेशन इज द टेक्निक विच इज गिवन टू एनी टाइप ऑफ फूड आइटम, ठीक है. So in order to kill the microorganism or avoid the food from spoilage easily, so that हमारा फूड जल्दी खराब नहीं हो, इसलिए हमें उसकी फूड प्रिजर्वेशन करना जरूरी होती है. क्लियर है? और now we'll be discussing next is meaning of food preservation is clear. अब जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का था हमारा, मीन इफेक्ट ऑफ हीट, एसिड and alkalis on food processing and preservation. Mostly जो हमने एक क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का, what is the effect of heat on food processing, what is the effect of acids on food processing, alkalis में आते हैं आपके salt and sugar, हम करें. और इसके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, what are the different types of food preservation techniques or food processing techniques which you use during your which you use during cooking or which you do after cooking.
फर्स्ट ऑफ ऑल इज जो मे फर्स्ट इज हीट। हीट से कैसे क्या इफेक्ट होता है फूड पे? हीट से देखो क्या होता है, जब हम हीट में कुक करते हैं, वी कुक एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से क्या होता है, उसकी प्रिजर्वेशन कैन बी डन एंड जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं। ठीक है, सबको पता है हीट से क्या होता है, जब हम हीट में कुक करते हैं जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो किल हो जाते हैं। सो अगर वो किल हो गए तो हम उसके बाद उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसको हम रख सकते हैं काफी फॉर लॉन्गर टाइम। उसके बाद दूसरा क्या होता है हीट से, हीट ऑल्सो कॉजेज द डिहाइड्रेशन। ऑब्वियसली बात है, जब हीट से हम कुक कर रहे हैं तो उसका जो वाटर कंटेंट है वो भी उसमें खत्म मीन्स कम हो जाता है, और एक तरह से तुमने डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना चाहिए, उसमें ग्रेवी बना रहे हो या कुछ चीज बना रहे हो, कितना चाहिए वो उस पर डिपेंड करता है। तो उससे क्या होता है, उसके वाटर कंटेंट भी कम हो जाता है, और जब उसमें वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी वाटर चाहिए राइट टू सर्वाइव करने के लिए। तो हीट से क्या होगा, जब उसकी डिहाइड्रेशन वाटर कंटेंट कम हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप ही नहीं होगा। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम। इज इट क्लियर हीट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ठीक है, अब आ गया एसिड्स। एसिड्स में सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड हम यूज करते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेशन के लिए अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, Shruti, what is your question? You can just give me message. Shruti is raising hand. Okay, you can message me the question. Then we'll discuss. Then we'll discuss the acid. Acids में क्या होता है? Acids भी हमारे ग्रोथ बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट को कम करता है। ठीक है, वो कैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट को कम करता है, क्योंकि वो उससे क्या होता है, एसिड जो है पीएच लेवल को, किसी प्रोडक्ट के पीएच पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है जो उसके लेवल को कम कर देता है। उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अटैक नहीं कर पाते हैं इजीली। विनेगर में तुमने देखा होगा, हम होटल्स में भी विनेगर अनियंस होते हैं, अनियंस को हम जो सैलेड में खाते हैं विनेगर के सॉल्यूशन में डिप करके रख सकते हैं तो वो खराब नहीं होते, उसको कभी भी मीन्स काफी टाइम तक हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो एसिड जो होते हैं वो भी हमारे फूड प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, नाउ we'll be discussing after acids, next is salt. अब ये salt and दो शुगर बचे हमारे। ठीक है, ये जो salt and sugar है, these comes in alkalis। अगर क्वेश्चन आता है ना what are the effect of alkalis, ठीक है, तो alkalis में you have to explain the example of salt and sugar, and बाकी जो भी मसाले जो add, all these comes in alkalis only। तो सॉल्ट का क्या काम होता है, जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए भी हम ऐड कर सकते हैं, कुकिंग के लिए भी हम ऐड करते हैं। सॉल्ट क्या करता है, इट ब्रेक डाउन द सेल वॉल्स ऑफ सेल्स। ठीक है, बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं उनको वो ब्रेक डाउन कर देते हैं सॉल्ट। और अगेन सॉल्ट का क्या काम होता है, इट डिहाइड्रेट्स द फूड बाय ड्रॉइंग आउट वाटर एंड डिहाइड्रेट्स माइक्रोबायल सेल्स। सिंपल का मतलब है कि जब सॉल्ट से भी क्या हो रहा है, एक तरह से उसकी वो डिहाइड्रेशन, उसका जो वाटर कंटेंट है उसको वो खत्म कर रहा है, उसको वो सुखा देता है एक तरह से। जब वो वाटर कंटेंट को सुखा देगा तो उससे क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है उनको भी वाटर चाहिए होता है, जब उनको वाटर नहीं मिलेगी तो वो अपने आप ही किल हो जाएंगे और हम वी कैन प्रिजर्व इट फॉर लॉन्गर टाइम। अगेन नेक्स्ट और क्या करता है सॉल्ट, सॉल्ट ऑल्सो रिड्यूसेस द ऑक्सीजन इन द मॉइस्चर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ऑक्सीजन को भी कम कर देता है जब हम सॉल्ट डालते हैं, जो उसके अंदर ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन भी जरूरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सॉल्ट के आने से तो वो किल हो जाएगा और वो इजीली डेवलप नहीं हो पाएगा। और सॉल्ट का एक काम भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार भी देता है। और वेरियस टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, नॉट ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा और भी तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड में डेवलप हो जाते हैं, उसको खराब करते हैं। तो और तरह के एंजाइम से भी ये सॉल्ट, देखो सॉल्ट बहुत एक अच्छी तरह का प्रिजर्वेटिव है जो हमारे बहुत सारे अमोर्फो ऑर्गेनिजम्स को भी ग्रोथ नहीं होने देता है। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज शुगर। शुगर का भी देखो, शुगर एंड सॉल्ट का ऑलमोस्ट सेम काम है, इसका भी ये काम है, इट क्लोजेस द ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल्स। अगेन सेम थिंग, इट डिहाइड्रेट्स द फूड बाय ड्रॉइंग आउट वाटर एंड माइक्रोबायल सेल्स में वो वाटर को रिड्यूस कर देता है। और ये भी हमारे
वेरियस टाइप्स के एंजाइम्स को पैदा होने से रोकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? So that was in this chapter. Just we'll discuss in short once again क्या जो हमने क्या किया डिस्कस इस चैप्टर में। फूड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, डेफिनेशन हमने की, कैसे हैंडल करते हैं फूड को, इट इज कॉल्ड एज फूड प्रोसेसिंग बिफोर इट इज बीइंग कुक्ड। ठीक है, फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे फूड प्रोसेसिंग के, ऑब्जेक्टिव्स क्यों क्यों फूड प्रोसेसिंग जरूरी होता है। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फूड ट्रीटमेंट्स। फूड ट्रीटमेंट में जितने भी मैंने आपको समझा दिए, मटेरियल हैंडलिंग, क्लीनिंग, सेपरेटिंग, डिसइंटीग्रेटिंग, पंपिंग एंड मिक्सिंग, हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज के बाद कूलिंग भी करना जरूरी होता है। कूलिंग में आ गई इवेपोरेटिंग, ड्राइंग, फॉर्मिंग और लास्ट में पैकेजिंग इज डन। ठीक है, उसके बाद हीट ट्रीटमेंट के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। हीट ट्रीटमेंट किस टाइप से वी गिव द हीट ट्रीटमेंट टू द फूड बाय रोस्टिंग, बेकिंग, फ्राइंग, और ये हो गया। और इट कैन बी डन थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन टाइप्स ऑफ योर रेज जो होती है, इससे फूड कुक होता है। उसके बाद हमने फूड प्रिजर्वेशन पढ़ा। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फूड प्रोसेसिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन। तो फॉर दिस आल्सो यू कैन, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये भी अब आई थिंक अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्रिजर्वेशन क्या होता है और प्रोसेसिंग क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब हम हीट अप्लाई कर, मतलब कौन क्या क्या इफेक्ट होता है हीट, एसिड्स एंड एल्कलीज का फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में। हीट का बहुत होता है, हीट हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है, डिहाइड्रेशन भी कर देता है। वे सेम एसिड्स का काम क्या होता है, एसिड जब हम डालते हैं तो उससे हम लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं, और वो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेट को कम कर देता है और उसके हाइड्रोजन, पोटेंशियल हाइड्रोजन को कम कर देता है। सॉल्ट का काम क्या होता है, सेल वॉल्स को ब्रेक डाउन कर देता है बैक्टीरिया की और किसी भी फूड आइटम की, और उसका पानी को सुखा लेता है सॉल्ट। ठीक है, पानी जब सूख जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉइस्चर चाहिए, वो नहीं पैदा हो पाएगा। ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है सॉल्ट, और वेरियस एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। ठीक है, लास्ट वन वाज शुगर। शुगर एंड सॉल्ट कम्स इन एल्कलीज। और भी डिफरेंट टाइप्स के एल्कलीज अगर पूछेंगे तो जो अदर आपके मसाले होते हैं उनका एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, उनका सबका यही काम होता है कि सेल वॉल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को डाइहाइड्रेट कर देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैदा नहीं होने देते। ठीक है, that's what all in this chapter today. I will be sharing the PPTs of other two chapters also जो हमने लास्ट में डिस्कस किए हैं, और ये वाले भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। बट बिफोर दैट, जो हैंडआउट्स है तुम्हारे पास, आई थिंक सबके पास मैंने मेल किया था ड्यूरिंग द कॉलेज ओनली। प्लीज जब भी हम डिस्कस दी चैप्टर, एक बार उसको नोट्स को भी एक बार पढ़ लिया करो। ठीक है, तो आजकल तुम्हारे पास टाइम काफी होता है, तो जब भी टाइम मिलता है नोट्स को एक बार पढ़ लिया करो। बाकी हम जो भी chapters है, we are discussing it here. ठीक है, now you can, I am requesting everybody to, जिसका कैमरा ऑन नहीं है, please on your camera so that I can take the attendance. To 160. Nakul Sidhu, Gaurav Chauhan, on your camera and first slide. ठीक है, पेज नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर 2 पे भी everyone is visible. पेज नंबर 3। विक्की कुमार, कौन है विक्की कुमार? ओके, इज विजिबल एवरीबॉडी? ओके, पेज नंबर 4। ठीक है,
Number 5. Number 6. Number 6. Mehul Singh, Vilesh Dijoria on your cameras. Amit Sali, Sonali Gupta, Anurag Sahu, Saurabh Thakur, Abhishek Visist, Archit Sharma. My cameras are off, I think. Okay. Nitik. Just a moment. Okay. Okay, guys, thank you very much. Now, I think your next class also will be starting after some time. You can just start leaving, and if you have any doubts, you can come to me. You can message me anytime. We'll be discussing in our later classes. Thank you, everybody. Stay safe. Stay blessed.